کے بعد آئیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اب آپ سمجھ گئے نا, سوچ بدلیے. جب سوچ بدلیں گے تب ما قدمت لغد, ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کون سی تیاری کی ہے, کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کون سا عمل کیا ہے. کیا سوچنا چاہیے. ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں ذرا اس کا منظر دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قحط پڑ گیا. اب بنگال میں بول رہا ہوں, قحط کو ہم کیا بتائیں, قحط سمجھتے ہیں نا, نہیں سمجھتے. سوکھا پڑ گیا, بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھا پڑ گیا اور اناج غلہ سب کچھ نہیں ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو اب کیا کیا جائے. تو ملک شام سے, سیریا جس کو آج بولا جاتا ہے سیریا, اس کا پرانا نام شام, شام سے 1000 اونٹ پر لدا ہوا اناج آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تجارتی بزنس تھا, تجارت کی بزنس تھا. وہ اسی اناج کا, غلے کا خرید و فروخت کا بزنس کرتے تھے. تو شام سے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ان کے پاس آئے. صبح پہنچا نا, شام کو پہنچا, اور تھوڑی دیر میں مدینے کے لوگوں کو اطلاع ہو گئی. جو مدینے میں جو بزنس مین تھے, جو تجارت کر رہے تھے, جو بزنس مین تھے, ان کو پتا چلا کہ عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ مال آیا ہے, غلہ اناج, تو چلو ان سے خریدا جائے اور مدینے میں بیچا جائے. ایسے موقع پر لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, ہے ہی نہیں مال. اب 100 کا مال جو عام دنوں میں 100 میں ملتا تھا آج 200 میں بک رہا ہے, میں لینا پڑ رہا ہے. لاک ڈاؤن میں کیا ہوا, مجبوری تھی. جب بالکل مرغی تک ہمارے یو پی میں تو بھینس بکری مرغی سب, ایک آدمی بیچارہ کہیں پتا چل گیا, اس کو کہیں کر لیا بھینس, تو بیچارہ 1 کلو گوشت لے کے آ رہا تھا. اپنے ہی لوگوں میں سے کسی نے مخبری کر دی, اس سے کہا ذرا اپنے ایکٹیوا کی ڈگی کھول. اس نے کھولا تو اس میں 1 کلو گوشت مل گیا. ایسے موقع پر پولیس والوں نے خوب کمایا. اس نے سوچا کہ اگر FIR ہو کے اندر چلے گئے تو بیل ویل کرانے میں اور کورٹ تک جانے میں 50-60 ہزار روپے طے ہوتا ہے. اس کو چھوڑا تو جانتے ہو 20,000 روپے سے 1 روپیہ کم نہیں لیا, تب جا کر اس کو چھوڑا ہے. یہ ہماری آنکھوں دیکھ, 1 کلو گوشت کی قیمت کتنی پڑ گئی, 20. ایسے اور ہمیشہ جاسوس دوسرے نہیں ہوتے, اپنے ہی ہوتے ہیں. ہمیں اپنے گھر پہ دال سے فکر نہیں ہو رہی ہے کہ چلو دال روٹی چل رہی ہے, ہمیں تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ تمہارے گھر میں گوشت کیوں پک رہا ہے. ہمیں اپنی پریشانی سے پریشانی نہیں ہے, ہمیں آپ کے اچھا کھانے اور پینے سے پریشانی ہے کہ آپ اچھا کیوں کھا رہے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت بن چکی ہے آج. تو حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ بزنس مین تاجر لوگ آئے اور کہا کہ امیر المومنین, تو عثمان سے کہا, عثمان غنی جی سنا ہے آپ کے پاس مال آیا ہے, جی بولیے, ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں, آپ بیچیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا ہاں بیچ دوں گا, اگر ہم کو اچھا منافع ملے گا تو, اچھی پروفٹ دو گے تو ہم بیچ دیں گے. کہا ٹھیک ہے ہم اچھی پروفٹ دیں گے. کہا بولو کیا. کہا آپ نے جو مال ملک شام سے 10 روپے میں خریدا ہے 10 درہم میں, ہم اس کے 12 درہم دیں گے. آپ نے جو مال خریدا ہے, مان لیجیے 10 کا خریدا تو ہم 12 میں ہم خرید لیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے, مجھ سے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے. ان بزنس مین لوگوں نے, اس تاجر لوگوں نے کہا اچھا ایسا کرو اے عثمان, ہم آپ کے 10 درہم کا مال 14 درہم میں 14 درہم میں ہم لینے کے لیے تیار ہیں. 10 کا مال آپ 14 روپے میں ہم کو دے دیں. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. سنیے بہت اچھی چیز بتا رہا ہوں میں ابھی آپ. تاجروں نے, بزنس مین لوگوں نے کہا اے عثمان چلو آخری بولی, آپ کا 10 کا مال میں 15 میں لینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے جو شام سے غلہ 10 درہم کا خریدا, ہر 10 درہم کے غلے پر 15 درہم میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عثمان کہتے ہیں جاؤ, ہماری تمہاری سودا نہیں ہو پائے گی, ہماری تمہاری سودا نہیں ہو پائے گی, اس لیے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ, اس سے بھی زیادہ مجھے نفع مل رہا ہے. ان تاجروں نے کھڑے ہو گئے اور جانے لگے, لیکن جاتے جاتے کہنے لگے اے عثمان, مدینے کے سارے تاجر آپ کے گھر میں موجود ہیں, مدینے میں جو بزنس کرتے ہیں وہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں,
मुझे नहीं मालूम कि हमसे ज्यादा आपको प्रॉफिट कौन दे रहा है। 10 से का माल 15 में हम लेने के लिए तैयार हैं और आप कह रहे हैं मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, नफा मिल रहा है, जबकि खरीदने वाले मदीने के सारे ताजिर तो यही मौजूद हैं। फिर मुझे बताओ कि 10 का माल 15 में हम ले रहे हैं, 15 से ज्यादा आपको प्रॉफिट मदद कौन दे रहा है, कौन दे रहा है मुनाफा? हजरत उस्मान ने कहा तुम 10 का माल 15 में ले रहे हो और मुझे 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में दिख रहा, लेने वाला दिख रहा है। 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में लेने वाला, इसका मतलब 10 का माल 100 दिरहम में, यानी 10 गुना। कहा कौन दे रहा है? हजरत उस्मान ने कहा मेरा रब, मेरा अल्लाह कह रहा है जो अल्लाह की राह में, मेरी राह में 1 दिरहम खर्च करेगा हम उसको 10 गुना ज्यादा देंगे, यानी 10 दिरहम का सवाब देंगे। हमने ये 1000 गल्ले से लदे हुए और अनाज से लदे हुए ये ऊंट हम गरीबों और मिस्कीनों में फ्री में तकसीम करेंगे। उनके घरों में चूल्हा जलेगा, उनके घरों में अनाज जाएगा, उनके बच्चे खाएंगे पिएंगे और मेरे एक दिरहम पर अल्लाह 10 दिरहम का सवाब हमें देगा, यानी 10 गुना नेकी मुझे मिलेगी। मुझे यहां नहीं आखिरत में चाहिए, मुझे यहां नहीं आखिरत में चाहिए, मुझे दुनिया में इसका इनाम नहीं, आखिरत में मुझे इनाम चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने अपने सारे ऊंटों को राह खुदा में तकसीम कर दिया, गल्ला राह खुदा में तकसीम कर दिया। 1 दिरहम का माल 10 दिरहम के बराबर सवाब। गौर करो, अब देखिए सारे 1000 ऊंट जो माल से लदे हुए थे हजरत उस्मान ने दे दिया और क्या कहा, मुझे इसका इनाम दुनिया में नहीं आखिरत में चाहिए, आखिरत में चाहिए। अब आखिरत में चाहिए का मतलब वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसने कल कयामत के दिन के लिए क्या किया है, कौन सी तैयारी की है। ये तैयारी होती है कयामत के दिन की जो हजरत उस्मान ने की। 10 का माल 15 में बिक रहा था, सोचो 1000 ऊंटों पर लदा हुआ गल्ला कितने में जाता, कितने में जाता। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने कुछ नहीं लिया और सारा माल तकसीम कर दिया और कहा कि अल्लाह मुझे 1 के बदले में 10 दे रहा है, 10 गुना दे रहा है, तो हम सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं और कर दिया। तसव्वुर कर रहे हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं। इसको कहते हैं कयामत के दिन की तैयारी जो हमारे और आपके बस की बात। हम ज्यादा से ज्यादा 1000 ऊंट होंगे तो 1 ऊंट का भी माल तकसीम नहीं करेंगे, उसमें से भी कोई फकीर गरीब आ जाए तो 1-8 किलो धान निकाल के दे देंगे, ले भाई तो अपने घर में। 1000 ऊंटों में से 1 भी ऊंट हम खर्च करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम मरेंगे और सीधे जन्नत में मिल जाएंगे। इधर मरे और उधर जन्नत। सूद खाने वाले भी जन्नत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सूद है और रिबा इस्नानी व सबून खूबन ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्म। सूद के 72 दरवाजे हैं, सूद ब्याज उसके 72 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके 72 गेट हैं। ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्म, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का दरवाजा सूद का यह है कि एक आदमी अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। सगी माँ के साथ जिना करने पर जो गुनाह उसको मिलेगा, ये सूद और प्याज के खाने वाले का 72 गुनाहों में से सबसे हल्का अजाब होगा। अब सोचो कि फिर 71 अजाब इससे बड़े बड़े और क्या होंगे। बहुत आसान समझ रखा है हमने सूद। आइए अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हजरत उस्मान ने 1000 ऊंट पर लदा हुआ माल तकसीम कर दिया। क्यों? हमें इसका इनाम कयामत। आइए एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूं। खुद अबू बकर सिद्दीक का वाक़या मैं बताता हूं, ये तो उस्मान का था। अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बनाए गए और लोगों ने उनको नबी अकरम के इंतकाल के बाद खलीफा मुतय्यन कर लिया। खलीफा बनने के बाद क्या करते थे वो? खलीफा तो हैं, अमीर तो बन गए, लेकिन बीवी बच्चों का पेट कैसे पाला जाए, उनका गुजर बसर कैसे किया जाए, उनका गुजर बसर कैसे चले। तो अब कहते हैं अब क्या करें, पहले तो अब तो मैं अमीरुल मोमिनीन भी हो गया हूँ। फिर सोचते हैं कि अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो बीवी बच्चे कैसे खाएंगे।
कपड़े की गठरी तैयार करते और उसको अपने सर पे उठाकर लाद कर गली गली जाते, आवाज लगाते कपड़ा कपड़ा कपड़ा। कपड़े बेचते, कपड़े की फरोख्त करते, कपड़ा बेचते और खरीदते भी और फरोख्त भी करते। लोगों में ये तहलका मच गया। अब ये अगर काम ही करेंगे तो हमारे मुकदमे कौन सुनेगा? जब ये काम ही करेंगे तो हमारी फरियाद कौन सुनेगा? जब ये दिन भर अपना बिजनेस देखेंगे तो इनको फिर हमारी बातें कौन सुनेगा? इनको अमीर बनाने से फिर फायदा क्या हुआ? अमीर तो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो लोगों की फरियादें सुने, लोगों की शिकायतें सुने और उनको दूर करे। मीटिंग होती है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आप अभी भी कपड़ा बेच रहे हैं? फरमाया अगर कपड़ा नहीं बेचेंगे, अगर तुम कपड़ा बेचोगे, उमर फारूक ने कहा अगर आप कपड़ा बेचोगे, दिन भर काम करोगे तो लोगों की शिकायतें कौन सुनेगा? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बीवी बच्चों के लिए गुजर बसर का इंतजाम कहां से होगा? अच्छा ठीक है, आपको बैतुल माल से, जो सरकारी खजाना होता है, बैतुल माल से आपको वजीफा मिलेगा हर महीने। एक वजीफा मुतय्यन कर दिया कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना इतना वजीफा। ठीक है, एक महीने वजीफा चला, 2 महीने का वजीफा मिला, तीसरे महीने का वजीफा मिला, चौथे महीने का वजीफा मिला। इतना मिलता था कि पूरे घर का गुजर बसर चलता रहा। एक दिन बीवी ने कहा सुनो, और इस मंजर को सुनने के बाद आज के मौजूदा हालात पर नजर डालना और एक नजर जरा योगी और मोदी के ऊपर भी डाल लेना, एक नजर इन हुक्मरानों के सरों के ऊपर भी डाल लेना। ये भी अमीरुल मोमिनीन हैं, ये अबू बकर सिद्दीक। वजीफा मिलना इतना मिलता था कि घर का गुजर बसर खत्म। अगले महीने फिर मिला, फिर पूरे महीने चला, खत्म। चौथे महीने तक वजीफा मिला और चौथे महीने के बाद बीवी ने कहा, चौथे महीने का वजीफा आ गया, बीवी ने कहा आपको मालूम है जब आप अमीरुल मोमिनीन नहीं थे और काम करते थे, मेहनत करते थे, तो इतना कमा लिया करते थे कि कभी कभी घर में मिठाई भी आ जाया करती थी। आपके बच्चे और मैं कभी कभी मिठाई खा लिया करती थी, लेकिन जब से आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं घर में मिठाई खाने को नहीं मिली है। मेरा दिल कर रहा है कि आज मिठाई खाई जाए, आपके बच्चों को भी एक एक मिठाई मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहते मेरी बीवी तुम्हें मालूम है कि बैतुल माल से मुझे जो वजीफा मिलता है, बैतुल माल से मुझे जो पूरे महीने का राशन मिलता है, वो इतना मिलता है कि उसमें हम कुछ बचा नहीं सकते कि उसको बेचकर हम मिठाई खरीद लें, बचा नहीं सकते हैं। इसलिए अब ये उम्मीद छोड़ दो कि हमें मिठाई खाने को मिलेगी। नहीं, मेरी बीवी दुनिया में अगर मिठाई नहीं मिली तो क्या हुआ, सब्र करो, इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ जो चाहेंगे मिलेगा। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, फर्माबरदार बीवी थी, अपनी शौहर की मजबूरी को समझती थी, कोई बात नहीं। चौथे महीने का जो राशन आया चुटकी चुटकी बचाया, आज इतना बचा लिया, कल इतना बचा लिया, फिर इतना बचा लिया, पूरे 1 महीने बचाती हुई इतना करना, लगभग 1-1.5-2 किलो ज्यादा, इतना बचा लिया। जब पूरा महीना हो गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगी लीजिए महीना खत्म, अब अगले महीने बैतुल माल से फिर वजीफा मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। ये राशन 1.5 किलो 2 किलो मेरे पास है, इतना मैंने बचाया था, 1 महीने बचाने के बाद इतना हुआ है। एक काम कीजिए, इतना राशन बाजार में कहीं बेचकर उसके बदले में मिठाई ले आइए। अच्छा तुमने बचाया था? हाँ। कहा मेरी बीवी तुमने मेरी आंखें खोल दी, बीवी ने बचाया था इसलिए कि मिठाई आ जाएगी इसको बेचकर। हजरत अबू बकर क्या कहते हैं, मेरी बीवी तुमने इतना बचाया, पूरे महीने बचाया तो इतना बच गया। कहा कि इसलिए बचाया था कि मिठाई मिल जाए। कहा अबू बकर सिद्दीक ने मेरी बीवी इतना बचाने के बाद भी मेरे घर का गुजर बसर चलता रहा।
कहा इसका मतलब ये 2 किलो मुझे बैतुल माल से ज्यादा मिलता था। तसव्वुर कीजिए क्या फिक्र आखिरत नहीं होगी उनके। ये बीड़ियों के धंधे करने वाले, स्मैक और गांजे की सप्लाई करने वाले, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने वाले और इसी को अपना बिजनेस बनाने वाले, जरा तसव्वुर करें कि जन्नत से हम कितना दूर हैं, जन्नत से हम कितना दूर हैं। क़यामत के दिन अपने रब के सामने हम क्या जवाब देंगे। सूद और प्याज खाने वाले, चुनाव के मौके पर सट्टा लगाने वाले, मैच के मौके पर सट्टेबाजी करने वाले, जरा तसव्वुर करें कि अपने रब के सामने खड़े होते वक्त या अपने नबी को तो छोड़ो, अपने मौलवियों को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। कितना दूर है ये फिक्र आखिरत से, जरा तसव्वुर करो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरी बीवी तुमने इतना रोज बचाया, 1 महीने में तुमने ये 2 किलो अनाज बचा लिया। इसका मतलब इस 2 किलो के बगैर भी मेरे घर का गुजर बसर चल गया। कहने लगी लेकिन कहना क्या चाहते हो? फरमाया कहना ये चाहता हूं कि इतना मुझे ज्यादा मिलता था, अगर बैतुल माल से मुझे इतना कम मिलेगा तब भी मुझे गुजर बसर चलेगा। जाते और बैतुल माल में वो 2 किलो अनाज जमा कर देते हैं और बैतुल माल के कैशियर से कहते हैं कि जितना तुम मुझे पूरे महीने का राशन देते हो उसमें से 2 किलो कम कर लो, इतना कम कर लो, अब मुझे इतना कम दिया करना क्योंकि मेरे घर का गुजर बसर इतने कम में भी चल गया। घर पे आई बीवी ने कहा मिठाई लाए? कहा नहीं। कहा वो 2 किलो अनाज कहां गया? कहा बैतुल माल में जमा कर दिया। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी ये सारे मुसलमानों की अमानत है, तेरे शौहर को मुसलमानों की अमानत में खयानत करना मंजूर नहीं था। मर जाना पर मुझे पसंद है लेकिन खयानत करना पसंद नहीं है। कल मुझे कयामत के दिन अपने रब को जवाब देना है। सोचिए ये थी आखिरत की फिक्र। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। इस मंजर को देखने के बाद हम जरा अपने आप गौर करें, हम कहां खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है, हम कहां खड़े हैं, हम अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? जरा सोचो। अबू बकर सिद्दीक के इस वाक़े को सुनने के बाद हम अपना अंदाजा लगाकर देखें कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहां खड़े हैं। क्या हम इनके पैरों में लगी हुई मिट्टी और धूल का भी मुकाबला कर सकते हैं? क्या है इनके जूते में लगी हुई मिट्टी का भी मुकाबला हम कर सकते हैं? तक़वे में, खौफे खुदा में, कयामत के दिन के डर में और अज़ाबे जहन्नम और अज़ाबे कब्र में क्या हम इनके पैरों में लगी हुई मिट्टी के भी मुकाबले में हैं? जरा तसव्वुर करो कि हमारी हैसियत क्या है, हम कहां खड़े। हर आदमी को सोचना चाहिए, यह एहसास अपने अंदर करना चाहिए क्योंकि मरना फैक्ट है। ये सच है कि मरना है, ये फैक्ट है कि मरना है, ये सच है कि मरना है। और जितना बड़ा ये सच है इससे बड़ा कोई सच नहीं है। किसी कम्युनिस्ट को खड़ा करके पूछो तो वो अल्लाह का इनकार तो कर देगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जबकि जानते हैं कि बगैर कोई वजूद के कोई चीज वजूद में नहीं आती। ये माइक है, ये वजूद में आया है। माइक देखने से पहले हमारा दिमाग कहेगा माइक बनाने वाला कोई है, वो घड़ी है, ये नजर पड़ती है मेरी, इससे पहले ये अंदाजा हो जाता है कि इस घड़ी का बनाने वाला भी कोई है। ये दुनिया जिसमें हम हैं इससे पहले हमारी खोपड़ी कहती है, हमारा दिमाग कहता है कि दुनिया का बनाने वाला कोई है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह का इनकार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। कहीं नहीं, अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, हम नहीं मानते किसी अल्लाह को। मेरे भाइयों, अल्लाह का इनकार करने वाले आज लाखों लोग मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन उन इनकार करने वालों से भी अगर आप पूछो क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसको मरना नहीं हो, तो वो भी इनकार नहीं कर पाएगा। वो भी ये कहेगा कि नहीं, मरना सबको है। तसव्वुर कीजिए कि मौत कितनी बड़ी सच्चाई है। नबी का इनकार करने वाले मिलेंगे, इस्लाम का इनकार करने वाले मिलेंगे, अल्लाह का इनकार करने वाले मिलेंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। इसका मतलब यह कि सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो यहां है उसको जाना भी है। हम और आप जिंदगी की उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं, जिंदगी की उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं जिसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। जैसे दिल्ली से और हावड़ा ट्रेन चलती है, दिल्ली से कोई बैठा हावड़ा में आकर रुक गई, इससे आगे नहीं जाएगी क्योंकि उसकी आखिरी स्टेशन हावड़ा है। हावड़ा से चली और दिल्ली रुक गई, अब दिल्ली से आगे नहीं जाएगी क्योंकि लास्ट स्टॉपेज उसका दिल्ली है। हमारा लास्ट स्टॉपेज कब्रिस्तान है।
ہم اور آپ زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس ٹرین پر چل رہے ہیں، اس کا آخری اسٹاپیج قبرستان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی کی جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی منزل 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی منزل 2 دن کے بعد آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی اسٹیشن آج آ گئی اور کسی کی اسٹیشن کل آنے والی ہے، لیکن جانا سب کو ایک ہی منزل پر ہے، جانا سب کو ایک ہی مقام پر ہے، اور سب کا اسٹاپیج وہی قبرستان ہے۔ وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے حلق پر تمہاری موت، تمہاری روح نرخرے تک پہنچ جائے گی۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب ملک الموت روح نکالے گا اور یہ روح تمہارے نرخرے تک، تمہارے حلق تک آ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے۔ یہ روح جب نکلتی ہے نا، ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ اب سنو، بہت قیمتی چیز، روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے یہاں سے ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرتا ہے، روح جب نکالتا ہے تو روح کہاں سے نکلتی ہے؟ سب سے پہلے نیچے سے، پیر کے تلوے سے کھینچتا ہے، روح یہاں تک آتا، کھینچتا ہے یہاں سے تو یہاں تک آتا۔ آپ دیکھیے گا کسی بھی مرنے والے کے پاس بیٹھ کر، سب سے پہلے اس کے نیچے کا حصہ بیکار ہوتا ہے، بے جان ہو جاتا، کام نہیں کرتا، کیونکہ روح یہاں سے نکالی جاتی ہے۔ یہاں سے جب روح نکلتی ہے تو پہلے پیر کا حصہ کام کرنا بند کرتا ہے، پھر ٹخنا کام کرنا بند کرتا ہے، پھر یہ روح نکلتے نکلتے ایڑی تک آ جاتی ہے، ایڑی سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح نکالتے نکالتے گھٹنے تک آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر گھٹنے سے نکل کر ران پر آتی ہے، پھر ران سے نکل کر کمر تک لاتا ہے روح کو، پھر کمر سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، پھر سینے تک کھینچ کر لاتا ہے، سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر یہ روح نکلتے نکلتے حلق تک پہنچ جاتی ہے تو حلق سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جب حلق تک پہنچتی ہے اور حلق سے جب نکالتا ہے تو آدمی کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ دیکھیے گا انتقال کے وقت آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں، جب اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، جب روح فرشتہ نکالتا ہے اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے روح کو نکلتے ہوئے، ملک الموت کو، روح کو کھینچتے ہوئے وہ دیکھتا ہے، ایسے کرتے، اور اسی وقت وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس رحمت کے فرشتے کھڑے ہیں یا عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں۔ مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی روح کے بارے میں سمجھ جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، میری روح کو لین میں ڈالا جائے گا یا سجین میں ڈالا جائے گا۔ اس کو اپنا پورا منظر، پوری زندگی کے کارنامے یاد ہو آ جاتے۔ سب کے ساتھ یہ ہونا ہے، ہم اور آپ سب اس مرحلے سے گزریں گے، یاد رکھیے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سن کر کل بھول جائیں، لیکن جن کی منزل آ چکی ہے اس منظر کو پھر روح کو جب کھینچتا ہے تو روح ناک اور کان اور آنکھ، یہ 3 راستے روح کے نکلنے کے، ناک، کان اور آنکھ کے راستے سے وہ باہر نکلتی ہے۔ جب نکلتی ہے تو نکلتے ہوئے آدمی دیکھ لیتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اس آیت پر غور کرو، قرآن کی اس لائن پر غور کرو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ۔ تم سمجھتے ہو کہ مرنے سے پہلے میرے ماں، میرے باپ، میری اولاد میرے پاس بیٹھی ہے، وہ میرے قریب ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ اس منظر کو سوچ کر بھی اگر کوئی آدمی کا دل نہ پگھلے
تو मैं समझता हूं कि उसका दिल नहीं पत्थर है। इन आयतों को सुनने के बाद भी अगर वो अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयारी ना कर सके तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा पत्थर दिल शायद कोई ना हो। अगर अल्लाह ने कहा था कुरान में कि अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारा होता तो पहाड़ भी झुक जाता और पहाड़ भी मौत हो जाता और पिघल जाता। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। पहाड़ पर कुरान उतारा होता तो पहाड़ भी मोम बनकर पिघल जाता, लेकिन बाहरी इंसान तेरे दिल पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती है और तू पत्थर दिल बना हुआ है, तेरा दिल पिघलता नहीं है, तेरी आंखों से आंसू नहीं आते हैं और आखिरत के बारे में तू कुछ सोचता नहीं है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। क्यों नहीं निकाल लेते? उस वक्त हम सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे करीब नहीं होते। उस वक्त जितना करीब हम होते हैं कोई नहीं होता, लेकिन तुम्हारी निगाहें, तुम्हारी आंखें हमें देख नहीं सकती, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी निगाहें हमें देख नहीं सकती। वलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। कैसा थप्पड़ मारा है अल्लाह ताला ने दुनिया के सुपर पावर लोगों को, दुनिया के ताकतवर लोगों को। वलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ताकत काम नहीं कर रही है, अगर तुम सबसे बड़े ताकतवर हो और तुमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, अगर तुम ये समझते हो तो उस मलकुल मौत से वो रूह छीन कर दिखाओ और अपने अंदर वापस लौटा कर दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। अटल बिहारी जी रूह वापस नहीं कर पाए, इंडिया के पावरफुल आदमी थे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बॉडी गार्डों ने छल्ले छल्ले कर दिया, अपनी रूह को अपने अंदर लौटाने में नाकाम रही। राजीव गांधी नाकाम रहे, जनरल ज़ियाउल हक नाकाम, अय्यूब खान नाकाम, बेनजीर भुट्टो नाकाम, सद्दाम हुसैन नाकाम, खुमैनी नाकाम, सारे नाकाम नजर आते हैं। शाह फैसल नाकाम, शाह फहद नाकाम, सब नाकाम। दुनिया के पावरफुल आदमी रहे नाकाम, बादशाह रहे लेकिन नाकाम। वही अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे ऊपर किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ नहीं है, तुम अपने आप ही को सबसे बड़ा समझते हो, पावरफुल समझते हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तुम मलकुल मौत तो रूह निकाल रहा है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, उससे छीन कर दिखाओ और अपने अंदर वापस करके दिखाओ। देखा किसी ने मलकुल मौत से रूह छीन कर अपने अंदर वापस ले लियो? उससे बड़ा ताकतवर कौन है? भाग और उसको भगाया हो? नहीं। कितनी बड़ी, कितना बड़ा थप्पड़ मारा है अल्लाह रब्बुल आलमीन। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो उस रूह को लौटा कर दिखाओ। नहीं, यहीं से पता चलता है कि कोई है हमारे ऊपर और उसी को हम कहते हैं अल्लाह। उसी का नाम है सुपर पावर, वही है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स और वही है मास्टर ऑफ यूनिवर्स। मेरे भाइयों, उसी को कहा जाता है और उसी की चलती है। ये सब हम और आपको, सबको इस दुनिया से जाना, ये सबसे बड़ी हकीकत है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आइए एक चीज की तरफ हम आपको और लेके चलते हैं। जरा देखिए, मामून रशीद ये अब्बासी एक खलीफा गुजरा है। बनु अब्बास में सबसे ज्यादा पावरफुल एक खलीफा गुजरा जिसका नाम था मामून रशीद। मामून रशीद अपने सियासी विरोधियों के लिए, अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए, अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन के लिए बड़ा सख्त था। जैसे आज हमारा मोदी, जैसे आज हमारा मोदी, उसका जो विरोध करता है वो अंदर जाता है, जो बीजेपी के खिलाफ जाता है उसके ऊपर केस हो जाता है। तो जिस तरीके से ये अपना पॉलिटिकल विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करता, ऐसी मामून रशीद भी अपने पॉलिटिकल, अपने सियासी मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं करता था। ये सच है, लेकिन पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा था, अवाम के लिए बड़ा नेक था। अवाम के साथ कभी इसने बेइंसाफी नहीं की। मामून रशीद आज अपने दरबार खिलाफत में बैठा हुआ है, लोगों की शिकायत सुन रहा है। एक बूढ़ी औरत लाठी टेक कर आई और लाठी टेक करा कर कहती है, खलीफा
اے مامون رشید، آپ کی رعایا کے ایک ظالم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کی ایک رعایا نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا، چھوٹی سی زمین تھی، وہی میرے بڑھاپے میں ظلم کیا ہے، آپ میرا فیصلہ اس دنیا میں کریں گے یا کل قیامت کے دن؟ بس اتنا کہنا تھا، مجھے انصاف اس دنیا میں دیں گے یا آخرت میں؟ مامون رشید نے کہا، ماں تیرے اوپر ظلم کس نے کیا ہے؟ اس کا نام تو بتاؤ۔ بڑھیا کہتی ہے، جو اس وقت آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بغل میں لگی ہوئی کرسی پر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بغل کی طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے انسان پر نظر دوڑائی تو وہ خود اس کی اولاد، اس کا بیٹا، ہاں آپ کا بیٹا جس نے مجھ سے میری زمین چھینی اور لاکھ منت ضمانت کرنے کے بعد بھی میری زمین نہیں لوٹائی، آج میں انصاف مانگنے آئی ہوں۔ اگر آج آپ انصاف نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن آپ کو انصاف دینا ہوگا۔ مامون رشید نے اپنے وزیر سے کہا، اس کا گریبان پکڑو اور اٹھا کر پکڑا۔ اب کہا، آئے میرے بیٹے، تم بھی اپنی صفائی بڑھیا کو اس سے بہتر اور اس سے زیادہ دودھ دینے والی گائے دے کر اور بہت سا انعام سے نواز کر اس بڑھیا کو واپس کیا، اور ان سپاہیوں کو ملک شاہ سلجوقی نے اس کو سزا دی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ احساس کرنا پڑے گا کہ جب کسی کے سامنے آخرت کا نام آئے تو اس کا کانپ جانا چاہیے اس کا دل، کیونکہ اس دنیا میں انصاف اگر یہاں نہیں کرو گے تو یقین مانیے وہاں ضرور کرو گے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے دن یہ ہونا ہے، یہ ہونا، کیونکہ ایسی دنیا ماننا پڑے گی جہاں پورا پورا انصاف ملے۔ آپ کو معلوم ہے ہٹلر نے کتنے لوگوں کو مارا ہے؟ لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا ہے۔ اس کے بعد ہٹلر کو بھی مارا گیا، ہٹلر کو مارا گیا۔ جانتے ہو جس نے بھی ہٹلر کو مارا، یہ ہٹلر کی سزا نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے کئی لاکھ یہودیوں کا قتل کیا تھا، اور ایک ہٹلر کو مار دینے سے لاکھوں یہودیوں کے قتل کی سزا پوری نہیں ہوئی۔ اگر کئی لاکھ مرتبہ ہٹلر کو زندہ کر کے کئی لاکھ مرتبہ مارا جائے تب بھی ان مقتولوں کی سزا اس کو پوری نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ایک ایسی عدالت ماننا پڑے گی جہاں انسان کو اس کے جرموں کی پوری سزا ملے، پوری سزا ملے۔ دنیا میں اتنے بہت سے سیاسی گنڈے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے بہت سے پولیٹیکل گنڈے ہیں جو گنڈے ہیں لیکن چونکہ چناؤ جیت جاتے ہیں اس لیے حکومت بھی ان کو ٹکٹ دیتی ہے۔ کتنے لوگوں کا مرڈر کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا قتل کیے ہوئے ہیں، خون بہانا ان کے لیے گاجر اور مولی کی طرح کاٹنے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی 20 آدمیوں کا قاتل، کوئی 30 آدمیوں کا قاتل، کوئی 50 آدمیوں کا قاتل، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ دنیاوی عدالت میں پیش کر کے کیا سزا دیں گے؟ صرف سزائے موت، پھانسی کی سزا۔ ایک بار سزا دینے کے بعد کیا ان کی سزا پوری ہو گئی؟ نہیں ہو پائے گی پوری، کیونکہ انہوں نے مرڈر کیے ہیں 50 اور پھانسی ان کو دی گئی ایک بار۔ ابھی 49 قتل کی سزا اور باقی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی عدالت ماننا پڑے گی جہاں اس نے دنیا میں جتنے جرم کیے اس کی پوری سزا اس کو ملے۔ اور وہ کون سی عدالت ہے؟ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے جہاں انسان کو اس کے کرموں کی پوری سزا، انعام بھی ملے گا۔ ہم نے کسی کی جان، ایک بچہ سمندر میں ڈوب کے مر رہا تھا، ہم تیرنا جانتے تھے، کوئی نہیں تھا، گئے اور اس کو نکال لیا، بچا لیا، اس کی جان بچ گئی۔ میرے بھائیوں، اب وہ لا کر ہمیں انعام دیتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے، تو کیا اس نے جان بچانے کی قیمت دی؟ کیا کسی انسان کی جان کی قیمت 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے؟ چلو اس نے 50 لاکھ دے دیے تو کیا 50 لاکھ میں اس کی جان کی قیمت ہو گئی؟ نہیں۔ کیا کوئی ہم سے کہے جرجی صاحب 50 لاکھ روپے ہم تمہارے گھر دے رہے ہیں، چلو تم اپنی جان دے دو، کیا ہم دے دیں گے؟ کسی انسان کی جان کی قیمت 50 لاکھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کی زندگی بچائی ہے تو اس کا کوئی انعام دنیا میں دے ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کا انعام بھی ہمیں پورا کا پورا وہاں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یوم الجزا بھی ہے اور یوم السزا بھی ہے۔ ہمیں ہمارے اچھے کرموں کا انعام پورا ادھر ملے گا، دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے، اور ہمیں اپنے جرموں کی سزا بھی پوری وہی ملے گی، کیونکہ یہاں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ما قدمت لغد، ایسا عمل کرو جو کل قیامت کے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس بات کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ میں یہ آپ کے سامنے کہ وہ عمر ابن عبدالعزیز
जिनकी बीवी 4 दिन से भूखी थी और पेट में बच्चा था, शौहर से कह रही 4 दिन से खाना नहीं मिला है, अगर पेट में बच्चा जिंदा रखना है तो कुछ खिलाओ मुझे। कहा मेरी बीवी मेरे इतना नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं। रात में चुपके से अपनी लौंडी को, खादिमा को भेजा, बैतुल माल थोड़ा सा दूध ले आओ, जब मेरा राशन आएगा तो हम वापस कर देंगे। उनकी लौंडी जाती है और रात के अंधेरे में कैशियर से कहती है कि एक प्याला दूध दे दो, अमीरुल मोमिनीन की बीवी हामिला है, पेट में बच्चा है, अगर खाना नहीं मिलेगा दूध तो बच्चा मर जाएगा, राशन मिलेगा तो वापस कर देंगे। उधार लेने देने का जमाना आज भी है। कहा अच्छा ठीक है दे देना अगले महीने का। हाँ दे दिया दूध। एक प्याला दूध लेकर जब लौंडी घर में घुसी, रात के अंधेरे में ये वुजू बना रहे थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, उमर इब्न अब्दुल अजीज देखा दरवाजे से कोई आ रहा है, पूछा कौन? लौंडी पकड़ी, कहने लगी जी मैं हूँ। कहाँ गई थी इतनी रात में? क्या छुपा रही हो? देखे चादर हटाई तो देखा प्याला। क्या है इसमें? कहा दूध। कहाँ से लाई हो? बैतुल माल से। किसके लिए? आप। क्यों? कहा 4 दिन से वो भूखी है, पेट में बच्चा तभी बढ़ता है जब माँ कुछ खाएगी, जब माँ को कुछ मिलेगा नहीं तो बच्चा पेट में कैसे बढ़ेगा। डर था कहीं वो मर न जाए, उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा दूध उधार मंगाया है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बजाय, वुजू बनाने के बजाय अपनी लौंडी से वो दूध का प्याला लेकर अपनी बीवी के पास बैठ गए और फरमाया मेरी बीवी क्या तुम जीते जी मुझे जहन्नम में ढकेलना चाहती हो, जहन्नम में झोंकना चाहती हो? फरमाया नहीं मेरे शौहर, ऐसा कैसे हो सकता है? इस दूध को मैंने मजबूरी में मंगाया है, क्योंकि आपसे मैं बार बार कहती रही लेकिन आप मजबूर है, नहीं ला सकते हैं। मैंने उधार मंगाया है, कोई खयानत नहीं की है, अगले महीने राशन मिलेगा, हम दूध खरीद कर वापस कर देंगे। फरमाया मेरी बीवी ये दूध सारे मुसलमानों की अमानत है, इस दूध को लेने से पहले क्या हमने पूरे इलाके के मुसलमानों से इस बात की इजाजत ली है? जब नहीं ली है तो ये दूध तुम्हारे लिए जायज कैसे हो जाएगा? मेरी बीवी ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है। कहती है मेरे प्यारे शौहर मेरी फिक्र मत कीजिए, आपकी अमानत जो मेरे पेट में पल रही है, कम से कम इस बच्चे को देखिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं सॉरी मुझे ये दूध वापस करना है। वो पीछे से कुर्ता पकड़ती है, कमीज पकड़ के कहती है कि इस बच्चे की जिंदगी के लिए दे दीजिए, एक प्याला दूध मुझे पी लेने दीजिए, कम से कम आपके इस बच्चे की हिफाजत हो जाए, इसको कुछ ताकत मिल जाए पेट के अंदर। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लोते हुए आंखों में आंसू भराए और कहते मेरी बीवी अपने पेट के बच्चे से पूछो, जुमले देखिए, अपने पेट में पलने वाले इस बच्चे से पूछो क्या इस दूध के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता? अगर आवाज आए कि नहीं रह सकता, आपके पेट के बच्चे से पूछो क्या इस चोरी के दूध, इस अमानत में कयामत के दूध के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता? अगर तुम्हारे पेट का बच्चा तुम्हें ये जवाब दे कि नहीं रह सकता तो इस बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी की जरूरत नहीं। इस बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है, मरता है तो मर जाने दो इस बच्चे को, मुझे अपने बीवी के पेट का बच्चे का मर जाना कबूल है, लेकिन अमानत में खयानत करना मुझे कबूल नहीं है। मुसलमानों के माल को धोखे से एक प्याला दूध लेकर अपनी बीवी को पिलाना मुझे गवारा नहीं है, मैं नहीं पिला सकता ये दूध। और गए और बैतुल माल में जमा कर दिया। तकवे की ताकत ये हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस माँ की भी हिफाजत फरमाई और उस बच्चे की भी हिफाजत फरमाई, क्योंकि तकवे में बड़ी ताकत होती है। ये कौन सी आखिरत की फिक्र थी? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत गद। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने उन्हीं चीजों में एक ही चीज भी शामिल है कि आपके यहाँ मस्जिद बन रही है, तामीर हो रही है, मस्जिद को बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपसे सवाल नमाज के बारे में भी होगा, तो नमाज पढ़ने के लिए जो जगह मुतय्यन है उसके बारे में एक तामीर चल रही है, तो वो उस्मान गनी की तरह क्या इस इलाके में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 1000 ऊंट सारा का सारा गरीबों में दे दिया? तो क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सके कि पूरी की पूरी मस्जिद में जितना खर्चा लगेगा मैं अकेला देने के लिए तैयार हूं? ऐसा एक नहीं है तो 10 लोग इकट्ठे हो जाएं,
10 नहीं है तो 100 आदमी तैयार हो जाए, जितना खर्चा हो, और 100 लोगों पर डिवाइड कर दिया जाए, और 100 लोग भी मिलकर अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर पूरा इलाका उससे ताउन करे और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आपको मालूम नहीं है मस्जिद बनाने का सवाब कितना है मेरे भाइयों। जब मस्जिद नबवी बनकर तैयार हुई तो 4 महीने तक उसमें बगैर रोशनी की नमाज हुई, मगरिब की नमाज अंधेरे में, इशा की नमाज अंधेरे में, फजर की नमाज अंधेरे में, क्योंकि वहां के सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि मस्जिद नबी में चिराग जला सके। अंधेरे में नमाज होती थी और 4 महीने गुजर गए। एक दिन नबी अकरम इशा की नमाज पढ़ाने गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद के कोने में चिराग जल रहा है और चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे दिख रहे हैं। आपने पूछा मस्जिद में चिराग, ये चिराग किसने जलाया? ये थोड़ा सा तेल मस्जिद में लेकर कौन आया? एक तरफ तमीमदारी बैठे हुए थे, कहा अल्लाह के नबी मैंने ये तेल, मुझे कुछ मिल गया, मैंने आधा तेल घर में रख दिया और आधा मस्जिद में लाया, इसलिए कि ये भी तो अल्लाह का घर है, इस घर में भी तो रोशनी होनी चाहिए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। तमीमदारी नबी को सीने से लगा के कहते अल्लाह के नबी क्या मैंने गलत किया है? क्या मस्जिद में तेल लाकर रोशनी करके मैंने गलत किया है? फरमाया नहीं, आज तमीम मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, आज तुमने इस मस्जिद में चिराग जलाकर इस मस्जिद को रोशन करके इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया। कद नफ़्फ़रतल इस्लाम, तुमने सिर्फ एक मस्जिद को रोशन नहीं किया, कद नफ़्फ़रतल इस्लाम, तुमने आज पूरा इस्लाम रोशन कर दिया है, आज पूरा दीन तुमने रोशन कर दिया है, आज पूरा दीन तुमने चमका दिया है। मेरे भाइयों, मस्जिद में छोटा सा चिराग जलाने का सवाब जब यह है कि पूरा दीन तुमने रोशन कर दिया, तो मस्जिद को बना सवार कर दुरुस्त करना कितना बड़ा सवाब होगा। मेरे भाइयों आओ, जिन लोगों ने जो ताउन किया, अब हमारी इस हदीस, हमारे ज़बान से इस हदीस को सुनने के बाद मौलाना जर्जीस को 20 साल, इतना लंबा कोई मौलवी चलता नहीं है किसी इलाके में। एक साल आपने किसी को बुलाया, दूसरे साल आप कहते हैं आपको बदलो, दूसरा लाओ, फिर तीसरे साल तीसरा लाओ, लेकिन 20 साल से आप इस इलाके में लौट फिर के मुझी को, और मेरा जलसा नहीं तो कोई और दूसरा जलसा करा नहीं पा रहे। नहीं साहब आएंगे तो जर्जी साहब, ये बंगाल वालों ने मुझे जो मोहब्बत दी है, बिहार के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने जो मोहब्बत दी है, और दूसरे इलाकों में, इसका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, इसका इनाम आपको अल्लाह ताला ही देगा, लेकिन तसव्वुर करो कि आज हमें यह देखना है कि आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। इस मोहब्बत में आप इस मस्जिद के लिए मेरे हाथ में लाके क्या देते हैं? इस मस्जिद के लिए इस हदीस को सुनने के बाद मेरे हाथ पर आप क्या ताउन करते हैं, ताकि हम भी इस ताउन में, इस मस्जिद के बनाने में हम भी हकदार हो जाएं और हमें भी इस सवाब में हमारा भी नाम लिख लिया जाए। तो लाइए, मैंने 2 घंटे अपने पूरे कर दिए हैं। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी, आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा। की कीमत ज्यादा है या कोई नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी जान की कीमत कम है? सबकी जान की कीमत बराबर है। वो अलग बात है कि अफ़आल, ईमान, एतक़ाद, अक़ाइद, अखलाक उसके जैसे होंगे, उस एतबार से उसके जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। वरना ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग के एतबार से, इंसानियत के एतबार से सबका मकाम बुलंद है। और अल्लाह ने कुरान में कहा भी है कि इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो अल्लाह से ज्यादा डरेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको ज्यादा मुबारक और महबूब अल्लाह के नजर में वो इंसान होगा। आज दुनिया में लोग तो एतराज करते हैं, मसावात, बराबरी होनी चाहिए। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, ओपन चैलेंज है कि दुनिया के अंदर बराबरी होनी चाहिए, मसावात होना चाहिए, अदल इंसाफ होना चाहिए। आज जो इतनी परेशानियां सामने, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज मसावात नहीं है, बराबरी नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, अगर कोई मंत्री का बेटा होगा तो उसको बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता। अगर कोई होम मिनिस्टर का बेटा होगा तो उसको किसी बोर्ड का
सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अगर कोई झोला छाप, अगर कोई गरीब मजदूर का बेटा होगा तो वो 5 लाख रुपए भी देगा, तब भी उसकी किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी गवर्नमेंट ब्रांचेस के अंदर उसकी नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो गरीब का बच्चा है, वो मिडिल तबके का बच्चा। अगर हमारे इस मुल्क के ब्राह्मण खानदान से होगा तो बहुत जल्दी उनकी नौकरी लग जाती, बहुत जल्दी उनका मामला हल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई दूसरे किसी कास्ट का हो, शूद्र का हो, क्षेत्रीय का हो, वैश्य का हो, या अगर दलित हो तो जनाब उसका तो भगवान भी अलग कर दिया जाता, उसके तो मनादिर भी अलग कर दिए जाते। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुसलमानों, कुरान और शरीयत पर ईमान रखने वालों, अल्लाह ने एक ऐसा कानून बनाया, आपको दिया है, जिसमें अमीर हो, गरीब हो, जिसमें मालदार हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, जिसके अंदर किसी भी स्टेट का रहने वाले हो, किसी भी इलाके का रहने वाले हो, उनकी नजर में इक्वल, सिंपल इक्वेशन, एकदम सीधा सादा, एकदम बराबरी है, बैलेंस है, कोई झुकाव नहीं या किसी का मकाम और मर्तबा ऐसा नहीं है कि ये मुखिया जी के बेटे हैं तो इनको इज्जत देंगे, इनको कुर्सी पर बिठाएंगे, और वहीं पर अब्दुल्ला सालिम आ जाए या आपके गांव का कोई गरीब आदमी आ जाए तो उनको कहेंगे कि नहीं जी तुम नीचे बैठो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। इस भेदभाव को, ये भेदभाव थे, इस तरह के अकायद और कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में माने जाते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान का नुज़ूल किया, जब अल्लाह ने फैसला किया इस दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए और अंतिम महर्षि को, लास्ट प्रॉफिट को भेजा, तो ये भेदभाव पहले थे। अल्लाह ने याद दिलाया कि मोहम्मद जाओ, लोगों को समझाओ कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा पैसों की वजह से नहीं है, तुम्हारी फजीलत तुम्हारे ओहदे की वजह से नहीं है। अल्लाह की नजर में तुम्हारा मकाम और मर्तबा तुम्हारे तक़वे की बुनियाद पर है। तुम अल्लाह से कितना डरते हो, तुम अल्लाह से कितना खौफ खाते हो, तुम्हें अपनी शरीयत से कितनी मोहब्बत है, तुम्हें अपने कुरान से कितनी मोहब्बत है। तो इस चीज की वजह से अल्लाह तुमको महबूब समझता है। तुम्हारी दौलत से या तुम्हारे पावर से या तुम्हारे गुरु घंटाल को देखकर या तुम्हारे वर्कर को देखकर अल्लाह तुमको मकाम मर्तबा अता नहीं फरमाता है, बल्कि तुम्हारे करतूत कैसे हैं, तुम्हारे अकायद कैसे हैं, तुम्हारा अखलाक क्या है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, और तुम्हारे लोगों के साथ सलूक बिहेव कैसा है, इस चीज को सामने देखा जाता। मेरे भाइयों, लोग तो आज बोलते हैं, हम तो साफ लफ्जों में कहते हैं, अरे हमारे इस्लाम में अल्लाह ने ऐसे क़वानीन नाफिज किए कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखेगा वो मुसलमान, और कोई भेदभाव हमारे इस्लाम में नहीं, जायज नहीं। ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, ऐसा नहीं है कि अरब का होगा तो वो शेख होंगे, वो जन्नत के टिकट लेकर आ गए क्या कि शेख है तो जन्नत में ही चले जाएंगे? नहीं, अगर शेख है दुनिया में नमाज, जिंदगी में नमाज नहीं है, अगर शेख है वो लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर, अकायद के अंदर कोई कमी पेशी है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसकी कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई भारत का रहने वाला मुसलमान अपने कुरान और शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ा है तो वो भारत का वो काला कलूटा इंसान ज्यादा अहमियत के हामिल है बिल मुकाबिल उस शेख की जो गोरा चिट्टा है, जो पैसा वाला, दौलत वाला है। इस मकाम, इन भेदभाव को मिटा दिया, अदा मुसावात और बराबरी। बताएं मुझे, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं कि किसी ने इंसाफ और बराबरी का तराजू को उठाया हो, किसी के पास नहीं समाधान, लेकिन इस्लाम के पास समाधान है। इस्लाम ये कहता है साफ लफ्जों में, सबके सब इक्वल, ऑल पर्सन आर इक्वल। अल्लाह के नजर में सबके सब बराबर। लेकिन अगर ईमान मोमिन है, अगर उसके काम अच्छे हैं और उसके अखलाक अच्छे हैं, अकायद अच्छे हैं, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम,
ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی غریب مسلمان ہے، کوئی مالدار مسلمان ہے، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جاتے ہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایکوالٹی۔ ایسا نہیں کہ مکھیا جی آئے ہیں تو ان کو پنکھے کے نیچے کھڑا کریں گے، اب کوئی بیچارہ کمزور آیا ہے تو اس کو ادھر دھکیل دیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا، جہاں ہو مکھیا جی وہیں کھڑے رہو۔ ایم ایل اے صاحب آئیں گے تو جی کہاں کھڑے ہوں گے؟ مسجد کے نیچے، جی وہیں جہاں جگہ مل گئی وہیں کھڑے ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں۔ نماز میں سب برابر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مکھیا کے لیے الگ آرڈر نہیں، سرپنچ کے لیے الگ آرڈر نہیں۔ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آئے، چونکہ پنچایت کا پرمکھ آدمی، پنچایت کا پردھان منتری ہوتا ہے مکھیا۔ کسی بھی پنچایت کو ترقی کی طرف لے کر جانا یا اس پنچایت کی تقدیر کو ختم کرنا، اس کو کمزور کرنا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کتنے اچھے احکام، نماز، اقیم الصلاۃ، سب کے لیے برابر۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی اپنے گاؤں کا ادیوگپتی آدمی، ٹھیکیدار آدمی ہے تو وہ 1 لاکھ روپے جا کر مفتی صاحب کو دے دے گا اور کہہ دے گا کہ حضرت مفتی صاحب میں 1 مہینے تک نماز نہیں پڑھوں گا۔ نہیں، اقیم الصلاۃ سب کے لیے برابر، آتوا الزکاۃ سب کے لیے برابر ہے۔ مطلب جو مالدار ہیں، جو اس نصاب کو پہنچتے ہیں، چونکہ دولت سب کے پاس نہیں ہوتی، جن کے پاس پیسہ ہے، جو کروڑ پتی لکھ پتی آدمی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے تو سب کے لیے ایک ہی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے۔ نصاب کو پہنچ گئے تو سب کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ سیمانچل کے مسلمان کمزور ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کیرلا کے مسلمان یا گجرات کے مسلمان مالدار ہیں زیادہ، وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر نصاب کو سیمانچل کا مسلمان بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس گجرات کا مسلمان بھی نصاب کو پہنچتا ہے تو سب کے لیے ایک ہی آرڈر ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ہے مساوات۔ اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے اس بھید بھاؤ کو دور کیا ہے۔ دیکھو دنیا والو، اگر تم نے اگر اندھ بھکتی کا چشمہ لگایا ہے تو اس چشمے کو اتار کر پھینکو اور دیکھو قرآن کریم کا فرمان، احادیث رسول کا پیغام دیکھو، equality before the Quran, all person all equal in the eyes of Allah Almighty سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، چاہے وہ جمن میاں ہو، ایمان اللہ پر ہے، چاہے وہ پروفیسر حسیب الرحمان ہو، ایمان اللہ پر ہے، تو دونوں کی قیمت، دونوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے عمل سے پرکھا جائے گا۔ میرے ہندو بھائیوں، یہ آپ کے گرنتھوں کو چیلنج کرتا ہے ہمارا قرآن۔ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ، سب کے لیے برابر آرڈر۔ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے، آپ کے یہاں تو بڑے بڑے اپنے گروؤں نے تو الٹے پلٹے سیدھے حساب کر رکھے۔ کیسے؟ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں برہمن ہوں گے تو وہ پوتر ویدات کو پڑھیں گے، اور اگر کوئی شودر ہوگا، چھیتریہ ہو گیا، ویشیہ ہوگا، اگر کوئی چھیتریہ ہے تو وہ خدمت کرے گا، اور اگر کوئی شودر ہے تو وہ آدیواسی بن کر رہے گا۔ وہ کبھی مندر میں نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بھید بھاؤ ہے۔ شودرو برہمن تامتی برہمنಶ್ಚೈತಿ ಶೂದ್ರತಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೋ ಯಾತಿ ವಿತ್ರತ್ವಂ ವಿಘಾದರೀಚ್ಯಂ ತಥೇಚ್ಛ ಸ ಏಕೇವಾ ತ್ರಿಪತಿ ಪರ್ಜಾನಾಂ ಕಥಂ ಪುನರ್ಜಾತಿ ಕೀರ್ತಾ ಪರಭೇದ۔ صاف لفظوں میں وید کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ عمل اگر اچھا ہے تو ایک غریب آدمی بھی مالدار کے اوپر، مالدار سے بڑھ سکتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ پرماتما کہتا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی یہی پیغام دیا ہے، لا فضل لعربی علی العجمی۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، مالدار کو امیر پر، امیر کو مالدار پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اعتراض کرنے والوں، اعتراض کرنے سے پہلے ہمارے قرآن کے احکامات کو ٹٹولو، قرآن کے فرمان کو پڑھو، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، وہاں پر تمہاری گرنتھ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ صرف اندھ بھکت بن کر اناپ شناپ اشکالات سوالات مت پیدا کرو۔ دیکھو کیا برابری ہے، مقام ہے،
फजीलत है, इक्वल और पर्सन आर इक्वल, सब के सब बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते तो कबीले कुरैश के कुरैश कबीले के एक बेहतरीन खानदान की एक औरत फातिमा नाम की औरत, चोरी उसका पकड़ा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो औरत हाजिर की जाती, आप अलैहिस्सलाम फरमान जारी करते, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उस औरत का हाथ काट दो इसलिए कि उसने चोरी की है। तो फिर अल्लाह के नबी के पास वो कबीले वाले, वो खानदान वाले, कबीले कुरैश के उस खानदान के लोग पहुंचे कि अगर हमारी फातिमा का हाथ काट दिया जाएगा तो हमारी नाक कटनी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती और तौहीन हो जाएगी, इसलिए जाओ उसामा बिन ज़ैद को भेजो सिफारिश करने के लिए, नबी से कहें कि मोहम्मद आप उस औरत को माफ कर दीजिए, उसके हाथों को मत काटिए। जब उसामा बिन ज़ैद पहुंचते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो आप अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, ये औरत है, पहली बार गलती हुई है, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको माफ कर दीजिए। दुनिया वालों याद करना, मेरे नबी का फरमान ये था कि उसामा बिन ज़ैद मुझे बड़ा दुख हुआ जो तुम इसकी सिफारिश करने के लिए पहुंचे हो, एक गलत आदमी की तरफदारी करने पहुंचे हो, एक मुजरिम की तरफदारी करने पहुंचे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें मालूम नहीं है दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कौमें तबाह कर दी गई इसी तरीके पर, गलत लोगों के पैरवी करने की बुनियाद पर। तुम इस कौम को तबाह करना चाहते हो, तुम इस कौम को बर्बाद करना चाहते हो, जाओ तुम निकलो यहाँ से, मैं फैसला करूंगा। फिलहाल उस औरत का हाथ काट दिया जाता है और अल्लाह के नबी ने कहा कि उसामा ये तो फातिमा है, ये तो कुरैश के किसी घराने की औरत है, इनकी जगह पर अगर मेरी अपनी बेटी, मेरी लख्त जिक्र अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह एक कदम पीछे नहीं हटता, उसका भी हाथ काट देता, इसलिए कि मेरे रब का फरमान है, इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आज देखो दुनिया में अगर कोई मिनिस्टर का लड़का अगर किसानों पर गाड़ियां चला देता है तो 5 दिन तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है, और यहाँ पर जनाब अगर कोई चला जाता है त्रिपुरा की हालत को दिखाने के लिए तो उसके ऊपर यूएपीए डालकर अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है और उधर मंत्री जी का बेटा है, कुर्सी खिसक जाएगी पीछे से अगर उसके ऊपर उसके हाथ में हथकड़ी डालेंगे। और इस्लाम के निजाम को देखो, मसावात, बराबरी, औरत हो के मर्द हो, ऑल पर्सन ऑल इक्वल इन द साइट ऑफ द कुरान। ये तो तुमने बनाया, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, साफ लफ्जों में कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मैं अंधकार को मिटाने के लिए आया हूं इस धरती से, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा इस भेदभाव को खत्म करने के लिए और इस नफरत को दूर करने के लिए। और आज उसी कुरान पर और उसी अहादीस पर एतराज दर एतराज कर रहे हो, पता नहीं है तो पढ़ करके देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी उठा करके देखो, सहाबा किराम पर इल्जाम लगाने से पहले उसको टटोलो, जुर्म क्या है, गुनाह क्या है उनका, कोई गुनाह नहीं है, नहीं जी इल्जाम लगाएंगे। अरे इस्लाम के